What if I tell you कि even अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पेरेंट्स आपको ट्रैवल नहीं करने देते एंड इवन अगर आपने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया, you can learn to find free travel opportunities, build the confidence to travel on your own, and even convince your parents to let you go. Because I did all of these things, and in this video, I'm going to teach you how. Hi, my name is Hamna, and 2.5 years पहले maybe आपकी जगह पे. I did BBA from Nust University, and my parents were never supportive of my traveling. After I graduated, my dream was to get into a corporate job और मैंने बहुत सारे MNCs में apply किया था and I even got an offer from Nike in the Netherlands, Amsterdam at their head office. Would you believe that? But typical desi parents issue, अकेली लड़की हम बाहर नहीं भेज सकते. So instead of that, I chose my second best offer, which was a sales job from Coca-Cola in Islamabad, management trainee in sales. But I really hated the work and I quit within 2 months. I was heartbroken at that point because मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा करियर खराब हो गया. But I knew कि इस तरह का मौका मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आना था. With such less responsibility. मेरे पास इतनी savings नहीं थी, but I still explored. I went to Hunza for 2 months. I went abroad to Egypt on exchange for 3 months. कश्मीर एक्सप्लोर किया, पाकिस्तान की सिटीज़ भी किए. पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे because job nahi thi and parents bhi strict the. So how did I manage to do that? In this video, I will teach you the 5-step process so you can do the same. Or you can just skip this video and you will never learn. But trust me, ये information आपको कहीं और नहीं मिलेगी because this is my first-hand experience as a Desi girl. So let's get into it, and I'm going to break this video into 4 sections. So number 1 is how to build the confidence to travel alone for the first time, especially as a girl. Number 2, how to travel for free and is Isaac worth it? Number 3, किस तरह पहले अपने first international trip पर जाना है. और नंबर 4, अपने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस करना है कि they let you travel. So let's get into it. How to travel alone for the first time, especially as a girl, अगर आपने पहले travel नहीं किया. So imagine a future you, a future Ali, Aisha, Zainab or whatever your name is. आप अभी प्लेन टिकट बुक करके खुद ही बाली एक्सप्लोर करके आए हो and you had the best memories, the best fun. Just imagine how you will feel. अकेला ट्रैवल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. You just have to be comfortable with your own company. So ये करना किस तरह है? आपने अपने साथ टाइम स्पेंड करना सीखना है आउटसाइड ऑफ द हाउस. एंड ये स्किल अगर आपके पास आ जाए, यू आर सो पावरफुल. आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा टू लिव योर लाइफ. वेदर यू वांट टू लर्न हॉर्स राइडिंग, डू MMA, you want to learn a new skill, you want to do public speaking, आप जो मर्जी करना चाहते हो आप उठ के कर लोगे. किसी का इंतजार नहीं करोगे because you have the confidence to do everything alone. और ये बहुत underrated skill है. First step is आपने friends के साथ किसी group trip पर जाना है. There are a lot of good travel companies. There's 3 मुसाफिर है, Adrenaline, Pluto Travels, Rambler Club वगैरह. इनके नाम यहाँ पे लिख दूंगी. उससे आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग की समझ आएगी. फिर सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपने साथ अकेले बाहर किसी कैफ़े शॉप, किसी लाइब्रेरी, कोई कॉन्सर्ट वगैरह छोटा सा एक डे इवेंट अटेंड करना है. जब आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो थर्ड स्टेप ये है कि आपने अपने साथ एक 1 डे ट्रिप बाहर करना है. सो अपने शहर से करीब 1 घंटा दूर कोई होटल, कोई एयरबीएनबी बुक करके आपने एक दिन वहाँ रहना है एंड जस्ट एक्सप्लोर द नियर बाय प्लेसेस. तो फोर्थ स्टेप जब आपने ये सब कर लिया तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक रही कि आप एक 3-4 नाइट्स का ट्रिप अपना अकेले उस पर जाओ, लाइक सोलो ट्रिप करो. और अगर आपको कोई गाइड चाहिए, सो आई हैव ऑल्सो रिटन अ गाइड ऑन सोलो ट्रैवलिंग इन हुंजा. इट्स फॉर फ्री. आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड फ्रॉम दैट यू कैन लर्न टू प्लान योर ट्रिप. कीप इन माइंड कि ये सब करते हुए इट्स नॉट गोना बी रेनबोज एंड सनशाइन. यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप नई चीज़ें कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं की. इट्स गोना बी अनकम्फर्टेबल, but that means कि you are growing and you are improving and time के साथ you will get used. And कोई भी अगर बुरे experiences भी हों then don't take it like उफ मेरे साथ ये बुरा हो गया, पैसे ज़ाया हो गए, बस cancel हो गया, किसी ने कुछ कह दिया while I was alone. नहीं, experience is experience and it helps you grow whether positive or negative. अब solo travel का confidence आ गया. The question is how to find free travel opportunities, especially for long periods of time. Traveling for free is 100% possible. और जो लोग कहते हैं कि it's not possible तो उन्होंने कभी किया नहीं है. मैंने खुद 2 organizations के साथ volunteer करके एक ट्रिप के अंदर अपना cost 0 कर दिया था और एक ट्रिप में अपना cost 50% less कर दिया. So watch this section to the end and I will give you examples of how you can do this. कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती and to an extent this is true. अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही
है, यानी कि आप उसके बदले में पैसे नहीं दे रहे, तो आप इन रिटर्न यू आर गिविंग योर टाइम, योर एनर्जी, योर स्किल्स or something in return. So this is useful if you have skills, time, energy, ये सब चीज़ें you have when you are young, and when you're young you don't have a lot of money. So this is a perfect fit for young professionals. So number 1 is IEI Pakistan. IEI Pakistan एक organization है which works for education in the northern areas of Pakistan like Gilgit-Baltistan. I worked with them as a freelance teacher for 3 months and accommodation and 1 meal a day उनकी तरफ से provided थी. बाकी मुझे एक monthly stipend भी मिलता था जो मेरे basic वहाँ के रहने के costs cover हो जाते हैं. When you are living up north तो आपके खर्चे बहुत limited होते हैं, maybe 20-30 के per month, क्योंकि आपने सिर्फ खाने की चीज़ें लेनी होती हैं. शहरों में रहते हुए तो और बहुत सारे costs आ जाते हैं like spending, dining out, friends, clothes, shopping. So follow IEI Pakistan on Instagram and remain updated with their opportunities. So number 2 is Isaac, और Isaac काफ़ी famous भी है. So Isaac is a student run organization जो exchange programs करता है with students from different countries. So from Pakistan you can go to different countries like Malaysia or Egypt, and then different countries के students Pakistan भी आते हैं. When you are going through Isaac you have to pay for most of your things like ticket, visa, health insurance, Isaac fee वगैरह. तो ये चीज़ें free नहीं हो सकती, लेकिन you can find an internship in that country जो कि इतनी pay करती हो कि वहाँ पे आपके living expenses cover हो जाएं. Accommodation तो वैसे भी Isaac की तरफ से होती है free, and that way the only thing you will have to pay is for your ticket and your visa. And वहाँ पे आप 2 months रहो, 3 months रहो, 6 months. There are even opportunities up to 1 year. So just imagine आप एक job से break लेके 1 साल you are working in Egypt. Just imagine that. And a lot of countries in South Asia like Egypt and Thailand are very cheap. तो जितना खर्चा में आप पाकिस्तान में रहते हो उतना ही खर्चा में आप वहाँ रह सकते हो. If you are still watching at this point in the video और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, या even अगर आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर दें. जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे, I will pray कि all of your travel dreams come true और आप पूरी दुनिया घूमें. कर दिया सब्सक्राइब. Let's continue. आइज़ैक के साथ जाने में ये फ़ायदा है कि आपको एक सपोर्ट मिलती है, एंड वीज़ा प्रोसेस में वो आपको हेल्प करते हैं, जो पाकिस्तानीज का बहुत बड़ा इशू है. कीप इन माइंड कि इट्स नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज. व्हेन यू आर गोइंग टू अनदर कंट्री आपको कल्चर शॉक होगा, एंड सेकेंडली अगर आप इंटर्नशिप करो आपको वहाँ जाके काम भी करना पड़ेगा. सो जॉब रिलेटेड इशूज, यू डोंट लाइक द एनवायरनमेंट एंड डोंट लाइक द बॉस, सो दीज थिंग्स आर ऑल गोइंग टू बी देयर, लेकिन दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड लर्निंग जर्नी. एंड एट द एंड ऑफ द डे द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस only help you grow, and they are very less compared to the whole positive thing of you living and working in another country. So Isaac you can only do up till the age of 30 years. If you are above 30 तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए है which is called World Packers or Workaway. Very similar to Isaac, आप different countries में जाके volunteer कर सकते हो. So you can do amazing things like working with orphans, volunteering to work at a farm, building houses. So basically social NGO kind of projects. इनके साथ मैं खुद नहीं गई हुई, but people all over the world go with them. Check out their website and definitely up. अच्छा, फिर एक ऑप्शन आती है couch surfing की, जिसके अंदर आप different countries में लोगों के घरों में रह सकते हो. इसके लिए you have to build a profile, and लड़कियों के लिए it will be easier to get host, लेकिन it's also the risk involved क्योंकि safety वगैरह के issues. ये भी मैंने खुद नहीं किया, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को जानती हूँ जो couch surfing करते हैं और बाहर के guests को अपने इधर घरों में भी पाकिस्तान में invite करते हैं. So if you invite guests here, आपकी profile build होती है, and then when you apply for abroad, so you're more likely to get accepted. And then lastly, Google is available. इतने सारे NGOs हैं in Pakistan. You can just DM them. You can reach out to them on Instagram. You can call them. Have unlimited audacity. And if you don't ask for something, you're never gonna get it. अब हमने ये सब कर लिया. We are going for number 3, which is going on your first solo international trip. This is the most scary thing you do जब आप पहली दफ़ा करते हो, but it changes your perspective, and when you come back, you are not the same person. So इस section के बाद I will tell you the most important thing कि अपने parents को किस तरह convince करना है. But first, let me tell you a story. I was in Egypt. It was my birthday, and in my family, no one really celebrates birthdays. वहाँ पर एक और लड़की थी. She found out she had the same birthday as me, and we told everyone, and everyone came to celebrate. One girl brought cake, and everyone was just, it was like 19 or 20 nationalities एक साथ dancing, celebrating the birthday. और even cafe के owners और random लोग cafe में उन्होंने join कर दिया. And just imagine having this experience. ये experience आपको सिर्फ solo travel से ही मिल सकता है. So to get these experiences करना क्या है? The first thing you're gonna do is decide the dates and decide the country. क्योंकि आपके पास
छुट्टियाँ किन डेट्स में है, फ्री आप किन डेट्स पे हो, एंड देन उस मौसम में, सो इज़ इट समर, इज़ इट विंटर, उस मौसम में कौन सी कंट्री इज़ बेस्ट। एंड ऑब्वियसली फॉर पाकिस्तानीज़ लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा आपको भी ईजिली मिल जाता है, जो अफोर्डेबल भी होती हैं। सो उनमें से वंस यू हैव सेलेक्टेड द कंट्री, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ लुक एट द वीज़ा प्रोसेस। लॉट ऑफ कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेस में वो कहते हैं कि शो प्रूफ ऑफ योर टिकट एंड होटल। सो आपने फिर टिकट्स एंड होटल्स उन डेट्स के बुक करने होंगे एंड मेक श्योर दे आर रिफंडेबल, ताकि अगर अल्लाह ना करे आपका वीज़ा ना मिले, सो यू कैन गेट दैट मनी बैक। सो यू कैन ऑल्सो रिजर्व द टिकट्स एंड होटल्स एंड देन अप्लाई फॉर वीज़ा। देन यू अप्लाई फॉर वीज़ा, जब वीज़ा आ जाए, the next step is to book the activities. You can DM different travel companies and ask कि उनकी क्या itinerary है, to get ideas के बाकी पाकिस्तानी companies कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। उसके अलावा you can watch vlogs of YouTubers. Some good travel YouTubers are Wild Lens by अबरार, जिसका सबको ही पता होगा। उसके अलावा you have बिलाल आजम, being a traveler, amazing. Activities दिन के हिसाब से प्लान कर लिए, then consider transport. अब टैक्सी बहुत महंगी है, so look for public bus and shuttle services, क्योंकि वो बहुत affordable होता है, especially बाहर की countries में। And then what you have to do is just get packing, और rupees को dollars में exchange कर दो and book your and go. Just जाओ, निकलो मुल्क से, भागो, वापस नहीं आना। मजाक करें, वापस आ जाना। पाकिस्तानी ऑलरेडी बहुत पता है। Now for the part that everyone is waiting for, कि देसी पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस करें कि आपको ट्रैवल करने दें। Let me tell you something. The reason हमारे पेरेंट्स हमें अपने ख्वाब जीने से रोकते हैं इस क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको रोका था, और उनके पेरेंट्स ने उनको रोका था, और उनका फिर आप अपने ख्वाब नहीं पूरा करोगे, if you don't learn to draw a boundary and say कि this is something जो मुझे करनी है, then you will be angry and bitter, और फिर आप अपने बच्चों के साथ भी यही करोगे और यही साइकिल कंटिन्यू करेगा। So you have to break the generational cycle. साउथ एशियन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मसला ये है कि देसी पेरेंट्स अपने बच्चों को ना 30 साल के भी हो जाए उनको काकों की तरह रखते हैं, उनको ग्रो नहीं करने देते, अपनी गलतियों से खुद सीखने नहीं देते। कुछ हद तक बच्चों की भी गलती है, क्योंकि वो भी नहीं सीखते कि किस तरह एक हेल्थी वे में एक बैलेंस या कॉम्प्रोमाइज रखें पेरेंट्स की विशेज और अपने विशेज के बीच में। टू टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, एक होते हैं गुड पेरेंट्स, जिनको कहेंगे हम रीजनेबल पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स हैं वो एक्चुअली गुड पेरेंट्स, जो कि बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, और जब वो आपको कहते हैं कि ना ट्रैवल करो तो उनकी वो बाकी में एक डर से कहते हैं, सेफ्टी के डर से। तो इन पेरेंट्स के साथ ना यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि दे आर ऑलरेडी वेरी गुड टू यू, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने पैसे कमाना सीखो और उनसे पैसे लेना बंद कर दो। एंड वंस यू हैव दैट, घर के खर्चे देना कर दो। इवन अगर आप लड़की हो, अंडरस्टैंड कि जब आप घर पे खर्चा दोगे ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट उनकी नजरों में बढ़ जाएगी। अच्छा, घर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। बिजली के बिल दे दिए, कोई चीज़ टूट गई उसको ठीक करा दिया, सोलर पैनल्स की सफाई करा दी, गेट खोल दिया, ताकि उनको रिलैक्स फील होने लग जाए और उनको लगे कि हमारा बच्चा या बच्ची रिस्पॉन्सिबल है, वी कैन डिपेंड ऑन दैम। फिर आपने उनकी ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट कर देनी है। सो स्टार्ट शेयरिंग स्टोरीज ऑफ योर फ्रेंड। अच्छा, ये मेरी फ्रेंड ये गई थी, ये मेरा दूसरा दोस्त है, ये भी गया था, उसने ट्रैवल करके आया। उनको वीडियोस दिखाओ, सोशल मीडिया पे वीडियोस दिखाओ, फॉरवर्ड करते रहो उनको। मैनिपुलेशन इज अ रॉन्ग वर्ड, आई वुड से कन्विंसिंग टैक्टिक्स। उनके साथ बहुत अच्छा बनो। व्हेन they are very happy with you, then उनसे कोई फेवर मांगो। अच्छा, if they are angry with you, तो ह्यूमर से उनको मजाक में डिस्ट्रैक्ट कर दो, ताकि उनका दिमाग उस चीज़ से हट जाए। फिर आप इमोशनल ब्लैकमेल भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अच्छा मैंने इतना कुछ किया है और आप लोग मुझे ये नहीं करने दे रहे, इट्स ओके, डोंट फील गिल्टी। वो लोग भी हमारे साथ करते हैं। And then the last thing you can do is give them a PowerPoint presentation of why they should let you go. ये मैंने किया था when I was traveling for the first time to Hunza. It was like a 1 week long trip with Bedar, and उसके बाद they actually let me go. So if none of this works, then you will have to draw a boundary. So drawing a boundary means saying respectfully to your parents के even if you don't give me permission, I will still go. सो अगर आपको लगता है ना कि बाउंड्री ड्रॉ करने से रिलेशनशिप ख़राब होगी, बाउंड्रीज ना ड्रॉ करके देखो एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। उनको इस तरह बैठा के समझाना है कि अम्मी अबू, आई रियली रिस्पेक्ट यू, और मैं आपकी बात समझती हूँ कि आपके ये वैलिड कंसर्न्स हैं, लेकिन अब दुनिया बदल गई है, या मेरी कुछ और डिज़ायर्स हैं, या जिस तरह भी आपने फ्रेम करना है, वट एवर योर थिंग इज़, एंड बी लाइक ये मैंने अपनी सब सेफ्टी के प्रिकॉशंस ले लिए हैं, मैंने ये सब अपने पैसों पे अर्न किया है, ये मेरा एक गोल है, और आई एम सॉरी कि आप लोग मुझे इस तरह कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाने दे रहे, लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू, आई एम सॉरी, मुझे अपने लिए करना पड़ेगा, इवन अगर आपको बुरा लगे। द सेकंड काइंड ऑफ पेरेंट्स आर अनरीजनेबल पेरेंट्स, दोज पेरेंट्स विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो हु आर नेवर गुड पेरेंट्स टू यू। वो बहुत वर्बली और फिजिकली अब्यूसिव थे, उन्होंने आपकी राइट्स नहीं पूरी की, फाइनेंशियली आप
आपकी राइट्स नहीं पूरी की, आपके एजुकेशन के पैसे नहीं दिए, बहुत कंट्रोलिंग है, आपको बेसिक चीज़ें नहीं करने देते, स्पेशली एज अ गर्ल जो आपकी राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन नहीं हासिल करने दे रहे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई है, जॉब के लिए नहीं जाने दे रहे। इट्स अ रियली सैड सिचुएशन, लेकिन इन पेरेंट्स के साथ देयर इज़ रियली नॉट ए गुड वे टू डील विद इट। आपने अपनी मेंटल हेल्थ और फ्यूचर का सोचना है। सो आई वुड सजेस्ट कि उनसे अलग हो जाओ एंड डू व्हाट यू हैव टू डू। Now that you know how to travel solo, stop watching this video, actually go and do it. You can even watch the travel vlogs on my channel to get an idea of how you can travel, book your things, go about it. And also, जिन locations पर मैं गई हूँ, अगर आप उन्हीं locations पे जाना चाहते हैं, उस location की vlog देखें YouTube channel पे, description के अंदर it's written the whole itinerary कि किधर किधर मैं गई थी और क्या क्या मैंने किया था. So you can just follow that exact step. I hope this video helped you. Please subscribe to my channel. It really, really, really helps me. Thank you so much. Bye.